students. I hope that all of you are doing very well. So I hope that you are doing great at your homes and keeping yourself safe, as I said. So I hope that you are enjoying my videos and learning something from them, and I hope that you will love this video also. So let's begin. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacles. So if you are determined that yes, that you can do that and you are here to do that thing, then no obstacle will come in your way and you will do that things very easily, right? So it's a belief that you have to be in yourself, that you has. But if that belief is not in your way, then definitely the obstacle will come and it will distract you from your path. Clear? So firstly believe in yourself and then the other things will come in way. Clear? So okay, so let's welcome you all to the ASAP Science. This is a best approach to studies, as you already know, and today we are going to discuss the another part related to motion, right? So what's that another part is? Second part, in which we'll discuss about what we'll have already discussed. We have already discussed about motion and its type, in which we have discussed that motion linear, rectilinear as well as uniform circular motion. ठीक है, उसके बाद we have discussed about motion along a straight line पर, जिसमें हमने रोड और ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था. Then after we have done speed and velocity, scalar and vector quantities, and after that uniform and non-uniform motion, acceleration and its types. So today we are going to discuss the instantaneous speed and instantaneous velocity, and after that unit conversion, numericals, graphs and equation of motion its type. We will do equation of motion and its type in a very brief way, because there are lots of graph numerical as well as the unit conversion numerical we are going to do today. So equation of motion, that will cover in the third part. Okay, so numerical related to it. So instantaneous speed and instantaneous velocity. So start करते हैं आज का टॉपिक. instantaneous speed और instantaneous velocity में बिल्कुल बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आएगा. आपको देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी चीज़ है, इसको हम फटाफट से कर देंगे. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट पर्टिकुलर टाइम, यानी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जिसकी हम बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था? बिल्कुल सही. मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो स्पीड, और वेलोसिटी में बात करेंगे तो डायरेक्शन के साथ बात करेंगे. इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि गुड़गांव से एंटर होने से पहले आपकी स्पीड कितनी थी, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन के साथ आपको पूछा है. लेकिन अगर मैं आपको पूछती कि आपकी गुड़गांव में आने के बाद कब स्पीड कितनी थी, तो उसमें स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं दिया है. तो उसको क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन फॉर अ टाइम इंटरवल विच इज वेरी स्मॉल. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इन चीज़ों को दिमाग में रखना है. So let's have example of it. So one example, that different position we have mentioned here, A, B, C, D up to L. तो इन positions पे with respect to time the position is changing. तो position changing, अगर मैंने आपको पूछ लिया at particular position E पे आपकी speed कितनी थी, तो उसको क्या बोलेंगे? instantaneous velocity बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है कि E पे आपने अपनी पोजीशन के बारे में बताना है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझ आया कि क्या होती है. लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल रिलेटेड. So our numerical is an athlete complete one round of circular track of a diameter 200 meter. Diameter circular track का जो diameter है, तो वेयर इज सर्कुलर ट्रैक हेयर? ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है. ओके, सो इस सर्कुलर ट्रैक का हमारे पास जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 200 मीटर. तो वो सर्कुलर ट्रैक कितना कंप्लीट करता है? 40 सेकंड में कंप्लीट करता है. तो हमने क्या बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करता है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स. अब 2 मिनट 20 सेकेंड हमें दे रखा है, हमें एक यूनिट नहीं दे रखे, तो हमें क्या करने पड़ेगा? यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी. सबसे
पहले गिवन लिखना है हर एक क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है हमारे पास, डायमीटर दे रखा है इस ट्रैक का, कितना है डायमीटर, 200 मीटर इज द डायमीटर, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है एक सर्कुलर ट्रैक का, 2 पाई आर। यू ऑलरेडी नो द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं पाई इंटू डी, क्योंकि जो हमारे पास डी होता है वो किसके इक्वल होता है, एक ये पूरा डायमीटर, जो पूरा डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 2d। 2d किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2d इज इक्वल्स टू आर। एक जो 2d है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, चाहे आप 2d लिखो चाहे आप 2 पाई r लिखो। हमने पाई इंटू डी लिखा है या 2 पाई r आप लिखोगे तो एक ही बात है। तो हमारे पास d यानी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसका है, क्योंकि आप सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल का डायमीटर ही आएगा। तो हमें d की वैल्यू दे रखी थी तो हमने डायरेक्ट पुट की, कितनी, 200 इंटू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई क्या होता है आपके पास, 22/7 लेते हैं, ठीक है। पाई की दो वैल्यूज होती हैं आपके पास, एक होती है 22/7 और दूसरी क्या होती है आपके पास 3.14। 3.14 दो वैल्यूज हमने लेनी है यहाँ पे, एक 22/7 और 3.14। इनमें से कोई भी वैल्यू को हम पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस कवर कितना हुआ 40 सेकंड में, 40 सेकंड में डिस्टेंस कितना दे रखा है, कितना कवर किया, डायमीटर कवर किया, कितना किया, 200 मीटर डायमीटर कवर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है हमारे पास, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हमारे पास डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड में निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो पहले ये देखिए कि हमें निकालना किस में है, 2 मिनट और 20 सेकेंड में निकालना है। 2 मिनट और 20 सेकेंड में निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट और 20 सेकेंड का मतलब क्या है, पहले 2 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 120 आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। और 120 में 20 सेकेंड्स को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 140। ये आपके पास आ जाएगा 120 प्लस 20 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको बच्चा, ऐड करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेकेंड्स डिफरेंट बन जाएंगे, आपने सिर्फ ऐड करना है क्योंकि यूनिट को कन्वर्ट किया है आपने, आपको टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया है। 2 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, सेकेंड्स में करेंगे कन्वर्ट, तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 ऑलरेडी दे रखा है, टोटल कितना हो गया, 140 सेकेंड्स हो गया, कितना हो गया, 140 सेकेंड्स हो गया। तो डिस्टेंस निकालना है आपने 140 सेकेंड में, कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका 140 सेकेंड में अगर आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट नीड टू। सो स्टूडेंट्स 200 मीटर हमारे पास कैसे आया है, सो लेट्स सी कि 200 मीटर मल्टीप्लाई करके हमारे पास कहाँ से आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले व्हाट वी विल डू, तो ऑलरेडी 200 पाई हमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस, तो इतना ही उसने ट्रैवल किया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, राइट। सो पुट द वैल्यू 22/7, वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हमारे पास देखिए टोटल हमारे पास कितना डायमीटर है, 200 डायमीटर, वो ऑलरेडी 40 सेकेंड में कर रहा है, लेकिन हमें कितने में चाहिए, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो उसके लिए वी हैव डन 140 सेकेंड्स, है ना। तो 140 सेकेंड्स हमने निकाले थे, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 140 सेकेंड्स, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 140 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 40 सेकेंड्स के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी कितने उसने राउंड जो है टोटल लिए, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20, 5 पे चला गया, फिर 7 2 कितने होते हैं, 7 2 14 होते हैं, तो यहाँ पे 20 पे चला गया, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ पे आपके पास यहाँ से क्या आया, 200 मीटर आंसर आया, क्लियर। ये एथलीट का 140 मतलब कितने नंबर ऑफ लैप्स उसने कंप्लीट किए, 140 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.5 आ जाएगा, चाहे आप 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 200 पाई से, चाहे आप 140/40 ऐसे लिख लो,
क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, उसने क्या बोला है कि फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वो कितनी आएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट तो वही है, आपको पता है कि 40 सेकंड में अगर वो पूरा राउंड मार रहा है ऑलरेडी, तो हमारे पास 40 सेकंड में अगर वो पूरा राउंड ले रहा है तो हमें क्या है वापस से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक ही बार घूमना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, ओनली 200 मीटर्स, क्लियर। और डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा जो हमने अभी निकाला, दैट इज 2200 मीटर। इतना वो घूमा है, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, सिर्फ 200 मीटर आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने 40 सेकंड में ही ऑलरेडी सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल। So Joseph jogs from one end A to the another end B of a straight 300 meter road। यानी जोसेफ ने A से B तक वो गया, तो यहाँ पे A पॉइंट पे B पॉइंट तक जाने के लिए स्ट्रेट रोड उसने लिया, तो वहाँ तक टोटल कितना था, 300 मीटर था, और 300 मीटर को उसने कितने मिनट में किया, 2 मिनट एंड 30 सेकंड में। फिर वापस से जॉग करता हुआ आया और 100 मीटर पीछे आया। 100 मीटर पीछे आया मतलब यहाँ पे एक सी पॉइंट पे आया, तो एक और 1 मिनट में उसने कवर किया। हमने क्या निकालनी है, उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है जॉगिंग की। पहले तो ए से बी तक निकालनी है, फिर ए से सी तक निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्टली ए टू बी। तो इसमें हमारे पास गिवन डिस्टेंस क्या दे रखा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का 300 मीटर, ए से बी तक का कितना दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है, क्लियर। फिर डिस्टेंस उसने ए से सी तक कितना कवर किया, ए से सी तक, ए से सी तक क्या हो जाएगा, पहले ए से बी गया, ए से बी गया कितना 300, और फिर बी से सी वापस आया तो कितना आया 100, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास डिस्टेंस 400, क्लियर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 400 हो गया। डिस्टेंस हुआ या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट में हम कभी ओवरराइड नहीं करेंगे, ओवरराइड नहीं करना है डिस्प्लेसमेंट में, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया कि टाइम कितना लगा, 2 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो फिर वही करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, और ऐड क्या कर देंगे इसमें 30 ऐड कर देंगे, क्लियर। 30 ऐड कर देंगे, इसमें 30 ऐड कर देंगे, 120 प्लस 30 कितना हो गया 150, क्लियर होगी बात। उसके बाद ए से सी तक के लिए कितना टाइम लगता है, ए से सी तक के लिए हमारे पास टाइम कितना लगता है, ए से सी तक के लिए टाइम है हमारे पास 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स अगेन। ए से सी तक के, ए से बी तक के लिए हमारे पास कितना है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ए से सी तक आते हुए 2 मिनट और 30 सेकेंड्स तो हैं ही हैं, और साथ में 1 मिनट और ऐड हो रहा है, राइट। यानी 150 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स और ऐड हो रहे हैं, 150 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स और ऐड हो रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 210 सेकेंड्स, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से बी तक की, ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक की कितनी है, ए से सी तक की डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी है 300 माइनस 100। क्यों हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने ओवरराइट नहीं करना है, हमने ये ए से बी तक गए, बी से सी तक वापस उसी रूट पे आ रहे हैं, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो कितनी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 200 मीटर। तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, पहले ए से बी पॉइंट तक की कितनी है 300 डिवाइड बाय 150, ए से बी पॉइंट तक की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 300 और टाइम कितना दे रखा है 150, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। उसके बाद हमारे पास अगर हम स्पीड ए से सी तक की बात करें तो 400 मीटर इज द डिस्टेंस, और हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, एवरेज स्पीड का जो टाइम है दैट इज 210 सेकेंड, कितना दे रखा है 210 सेकेंड। तो कितनी आ जाएगी स्पीड आपकी स्पीड आ जाएगी 1.9, इनको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 21 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर, हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, वही ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 300 मीटर, और टाइम कितना है 150, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर ए से सी तक की वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर डिवाइड बाय 210, टाइम बचे, टाइम को कम नहीं करना है, टाइम तो उतना ही लगेगा, हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको ओवरराइट नहीं करना है, टाइम आप ऐड करोगे, टाइम को ऐड करना, टाइम को सब्ट्रैक्ट मत करना, टाइम विल ऐड, यहाँ पे ऐड किया है ना तो टाइम ए टू सी में ऐड ही होगा, ठीक है। ए टू सी का मतलब ये नहीं है कि ए से सी तक गया, ए टू सी का मतलब है ए से बी तक गया फिर बी से सी तक आया, ठीक है। तो इसलिए ए टू सी आपसे डायरेक्टली ये मत ले लेना,
क्लियर होगी बात? तो कितना आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चे। ये आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। आपको नहीं कोई पॉइंट समझ आ रहा है, इसको पॉज कीजिए, फिर दोबारा से देखिए। नहीं समझ आ रहा तो अगेन पॉज कीजिए, फिर देखिए। तो इस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट यूनिट कन्वर्जन। सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को आती है यूनिट्स को कन्वर्ट करने की, कैसे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। सो आई हैव टेकन वन एग्जांपल ओवर हियर कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट कन्वर्जन की? यूनिट कन्वर्जन की जब हम बात करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है, राइट? और 1 आवर किसके इक्वल होता है? 3600 सेकेंड्स के। ये तो क्लियर है आपको? उसके बाद किलोमीटर पर आवर यानी 1000 को डिवाइड करेंगे 3600 से। 1000 को किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे काटेंगे, 2 5 जा एंड 2 18 जा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर? तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आपको कहीं पे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आए, आपने क्या करना है, सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 54 दे रखा है ना, तो 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट विद 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे आप इजीली 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। आपको क्लियर हो गई बात? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो आपने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है कि इनको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके क्या क्या आंसर आते हैं। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस, इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए और एवरीवन शुड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो next question is, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि h के साथ -1 लगाए तो ये -1 का क्या मतलब है। बच्चे चाहे आप -1 ऐसे लगा लो, ठीक है, मतलब h के -1 लगा लो, चाहे किलोमीटर पर मतलब डिवीजन में लिख लो कि किलोमीटर पर आवर, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द साइंस। ओके, सो बस डिक्रीजेस, बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया है कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है? कितने सेकंड्स में? 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन निकालनी है बस की कितनी होगी। तो सबसे पहले सेकंड्स में दे रखा है और ये आवर्स में दे रखा है, तो पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा वेरी इजीली। तो कन्वर्ट करेंगे सिंपल, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 80 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो उसके बाद आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जो उसके बाद आई, 60 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल वेलोसिटी, उसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16.66। एक्सेलरेशन निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t। तो वो हमारे पास टाइम कितना दे रखा है? 5 सेकेंड्स। फॉर्मूला लगाएंगे v - u/t का, तो बस कुछ नहीं करना, 22/22.22 - 16.66 डिवाइड बाय 5। सो यू विल गेट योर आंसर एक्सेलरेशन इन -1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या, उसने डिक्रीज की, तो ये रिटार्डेशन का साइन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब क्या है? रिटार्डेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि रिटार्डेशन क्या होती है। आई होप द न्यूमेरिकल्स जो आपको यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत बच्चों के डाउट्स आए थे मुझे कि यूनिट कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स पे बनाइए, तो मैंने आज आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन के न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए हैं। आई होप जो आपका पॉइंट है वो क्लियर हो रहा होगा। क्लियर? उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे अलग अलग ग्राफ्स के बारे में कि जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो क्या होगा, अगर यू कॉन्स्टेंटली यानी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तब क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तब क्या होगा। क्लियर? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस का टाइम से रिलेशन क्या बताएगा?
स्पीड बताएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का टाइम से रिलेशन क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और ये बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। क्लियर होगी बात। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये याद रखनी है बात आपने। क्लियर। डिस्टेंस और टाइम का अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर ये हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, मतलब आपके पास जिगजैग भी हो सकता है, मतलब यूनिफॉर्म मतलब डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करेगा, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे 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 कुछ कैसे भी हो सकता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म पाथ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है तो आपके पास क्या होगा, टाइम तो मूव करता रहेगा लेकिन डिस्टेंस मूव नहीं करेगा, मतलब टाइम तो बढ़ता रहेगा। आप एक जगह पे बैठे हो सुबह से शाम तक तो क्या हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन आप तो एक जगह पे कांस्टेंट हो ना, तो इसीलिए आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ऐसा ग्राफ शो करेगी। क्लियर। तो उसके बाद आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम शो करता है एक्सेलरेशन। क्लियर। वेलोसिटी बाय टाइम क्या शो करेगा, आपका एक्सेलरेशन शो करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगी। क्या आएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म में आएगा तो आपका जिगजैग पाथ फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी टाइम का रिलेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का, वीटी का मतलब क्या, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं इसको, वीटी ग्राफ। उसको एसटी ग्राफ बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम, और इसको बोलते हैं वीटी यानी वेलोसिटी टाइम। कांस्टेंट स्पीड के लिए हमने किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ऐसे है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ऊपर को जाएगा जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन डिफरेंट टाइम्स पे इंक्रीज कर रही है। और ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये चीज़ें आपको अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, The odometer of a car reads 2000 km at the start of the trip and 2400 km। जब ऑडोमीटर, जो कार के ऊपर ऑडोमीटर लगा होता है, जैसे आप डिस्टेंस नापते हो, तो वो जब उसने स्टार्ट किया कार चलानी तो 2000 किलोमीटर चली हुई थी ऑलरेडी। तो जब उसने इस ट्रिप को स्टार्ट किया तो 2000 किलोमीटर पे था। फिर जब उसके बाद उसने ट्रिप को एंड किया तो 2400 किलोमीटर पे था। अगर आपका ट्रिप जो है वो 8 घंटे चला है तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालनी है और मीटर पर सेकंड में भी निकालनी है। क्लियर। सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे इसको। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, स्टार्टिंग का ट्रिप, यानी कि हमारे पास इनिशियल ऑडोमीटर की रीडिंग दे रखी है, दैट इज 2000 किलोमीटर, राइट। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फाइनल ऑडोमीटर की रीडिंग दे रखी है 2400 किलोमीटर। देन हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2400 माइनस 2000, सॉरी यहाँ पे 2000 आएगा, 2400 माइनस 2000 तो कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर उसने जो टोटल ट्रिप किया। कितने में किया, द टाइम इज गिवन एज 8 आवर्स। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो कितना आ जाएगा, तो 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम इज 8 आवर्स। तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। फिर एवरेज स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, जस्ट एज मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5/18 के साथ। 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.88। क्लियर। आपको क्लियर होगी बात की एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, किलोमीटर एज वेल एज किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकेंड में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल। The Abdul, while driving to the school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो स्कूल जा रहा था तब उसने अपनी एवरेज स्पीड जो देखी वो क्या देखी, 20 किलोमीटर पर आवर है। फिर वो उसी ट्रिप से वापस आया, उसी रूट से वापस आया तो ट्रैफिक कम था तो उसकी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी बढ़ गई। होता है हमारे जनरल में भी कि अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाती है, ट्रैफिक कम होता है तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो उसने बोला कि एवरेज स्पीड निकालनी अब्दुल के ट्रिप की क्या होगी।
तो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा कि कितना है, स्पीड मेंशन्ड है लेकिन डिस्टेंस वी डोंट नो। सो लेट्स अ डिस्टेंस बी x, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, हमने x पोज कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस उसने बोला है कि उतने ही ट्रिप पे गया और सेम रूट पे वापस आया। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस गया है और जो डिस्टेंस वापस आया वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड किसके इक्वल होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जो हमारे पास स्पीड होती है, ठीक है, यानी कि v या s नहीं लेंगे क्योंकि s हम डिस्टेंस को लेते हैं, तो v जो हमारे पास होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, टाइम यहाँ पे चला गया तो यहाँ वेलोसिटी नीचे आ गया, तो यानी t इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, s अपॉन v के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, t इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी। तो यही हमने लिखा है, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम जो गया है वो तो कितने में गया है, टाइम डिस्टेंस कितना सपोज किया था हमने x, तो x बाय 20, स्पीड जो है जाने की कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड जो है आने की कितनी है x बाय 30, यानी x बाय 30 क्या है आपके पास स्पीड। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, x बाय 20 प्लस x बाय 30। यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो x बाय 20 डिवाइड बाय दूसरे पे क्या है x बाय 30। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम इनका, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में विल गेट 600 इन एलसीएम। ठीक है, क्या आ जाएगा 600 एलसीएम में आ जाएगा। क्लियर, एलसीएम में कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो एलसीएम में अगर हम 600 लेंगे तो ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 600। अगेन सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बट आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 50x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50 इंटू x। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/60, 5x बाय 60। तो यही है हमारे पास 5x बाय 60, और 5 को 60 से कैंसिल करेंगे तो 12 5 से 60 होते हैं, तो x बाय 12 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। टोटल टाइम निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है हमने। तो स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना हो गया टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा कि विल फाइंड है द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल स्पीड वो आ जाएगा टोटल टाइम। तो 2x जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास जो टोटल स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये कितने किसके इक्वल है, 2x हमारे पास टोटल डिस्टेंस दे रखा है वाइल गोइंग वाइल कमिंग, तो 2x हो गया मल्टीप्लाई बाय x बाय 12, तो 12/x आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो इतना कितना आ जाएगा हमारे पास, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 12 इज 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद आता है स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द कार इज ऑलरेडी शोन फॉर हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल। यानी 4 सेकेंड तक, यहाँ तक आपने लेना है इसका स्पीड जो ट्रैवल कर रहा है, और विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली कौन सा पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो शेडेड पोर्शन जो हमने किया है 4 सेकंड तक का वो ये है। उसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल किसके इक्वल होती है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है, हमने ये एरिया लिया है यहाँ पे, तो वो एरिया किसके इक्वल होता है, दैट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये एरिया किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट h। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका आ गया, बेस क्या है इसमें, यहाँ पे कितना कवर किया हुआ 4, और हाइट कितनी कवर की है 6, तो हाफ 6 × 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 मीटर। ठीक है, तो यानी कि कार ने कितना ट्रैवल किया है 12 मीटर। दूसरा उसने क्या पूछा था, यूनिफॉर्म मोशन, कि कहाँ से कहाँ तक नहीं चेंज हो रहा है। तो आप देखिए 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 सेकंड तक जो है हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन रह रहा है कार का। तो इसका मतलब क्या है, 6 से लेकर 10 तक क्या आ रहा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो आई होप ये आपको इजी भी लगा होगा, क्योंकि इजीली ग्राफ में हमने रिप्रेजेंट करके कर दिया। सो एक और देखते हैं क्वेश्चन ग्राफ का।
तो इसमें क्या दे रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है 3 ऑब्जेक्ट्स का A B C। तो इनमें स्टडी करना है ग्राफ को और बताना है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी जो कार है वो सबसे फास्ट ट्रैवल करेगी सबसे पहले। तो और क्या, और सारी की सारी आर ऑल द 3 एवर पास एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या एक ही पॉइंट पे जाएंगी, या हाउ फार हैज सी ट्रैवल व्हेन B passes A, कि C कितना दूर निकल जाएगी जब उसके वो A B को पास करेगी। ठीक है, तो हाउ फार हैज B ट्रैवल बाय द टाइम इट पासेस A, कि B कितना ट्रैवल कर चुकी होगी जब वो C को पास करेगी। ये हमारे पास C है, जब इसने C को पास किया तो कितना ट्रैवल कर चुकी होगी B। तो हमने बेसिकली डिस्टेंस निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो सबसे फास्ट जो है वो ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो स्लोप है किसकी ज़्यादा है, स्लोप मतलब कि कितनी लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा, स्ट्रीक लाइन किसकी है, नीचे से कौन सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, बी। तो इसका मतलब बी जो है वो फास्टेस्ट मूव करेगा। ठीक है, बी पॉइंट जो बी कार जो है वो क्या मूव करेगी, सबसे फास्टेस्ट मूव करेगी, या बी ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे फास्ट मूव करेगा। उसने कहा है कि आर ऑल 3 एवर पास एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कि क्या सारी की सारी सेम पॉइंट रोड के ऊपर ट्रैवल करती हैं। तीनों की तीनों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तीन की तीन देखो, यहाँ पे बी और सी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी और ए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए और सी यहाँ पे बी और सी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम लिख देंगे कि तीनों की तीनों जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो हाउ फार सी कितना ट्रैवल कर चुका होगा जब वो B को पास, हाउ फार C ट्रैवल्ड व्हेन B passes A, C कितना ट्रैवल कर चुका होगा जब B ने A को पास किया। B ने A को कहाँ पे पास किया, यहाँ पे पास किया, तो C उस टाइम तक कितना ट्रैवल कर चुका होगा। सो C देयर आर 7 यूनिट एरियाज बिटवीन 0 and 4, 7 यूनिट एरियाज, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 7 यूनिट एरियाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 यूनिट जो है वो एरिया डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है A और B। यहाँ पे आपके पास ये जो B है और ये मेरे पास A है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 यूनिट्स तक ट्रैवल कर चुका होगा। तो हमारे पास y एक्सिस में 0 और 4 के बीच में लाई करता है, तो वो जो ग्राफ किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राफ किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 के, किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो कितना, हाउ फार हैज द बी ट्रैवल्ड। फिर उसके बाद हमारे पास इनिशियल पॉइंट कितना है सी का इनिशियल पॉइंट कितना है, देखिए सी का इनिशियल पॉइंट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। तो इट मीन्स तो इनिशियल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, 4 × 4/7। फिर ए जब बी को पास करेगा तो डिस्टेंस कितना है ओरिजिन और सी के बीच में, तो वो डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 8 के बराबर है। किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 8 - 16/7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 5.71 किलोमीटर विल बी द आंसर। फिर उसने बोला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि हाउ फार बी कितना ट्रैवल कर चुका होगा जब वो सी से पास करेगा, बी कितना ट्रैवल कर चुका होगा। तो बी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 9 ग्राफ यूनिट्स तक के पास जा रहा है। देखिए यहाँ पे 9 ग्राफ यूनिट्स तक के पास जा रहा है बी और सी के बीच में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 × 4/7। तो 4/7 क्या है कि एक ग्राफ जो है आपके पास, एक ग्राफ यूनिट जो है यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो किसके इक्वल है आपके पास, 4/7 ग्राफ के इक्वल। किसके इक्वल है, 4/7 के इक्वल है। क्लियर, तो इसीलिए 4/7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास ऑलरेडी आपने ये जो आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं इनको कैलकुलेट करना है ग्राफिकल वे में, और वहाँ से आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा कि कैसे हमने निकालना है। तो इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 ग्राफ यूनिट का बोला है तो 9 × 4/7, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा बहुत ईजिली। क्लियर, तो ये हमारे पास हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बेसिकली ये ग्राफिकल मेथड की एप्लीकेशन है वीटी ग्राफ में और एसटी ग्राफ में। ठीक है, तो ये v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² + 2as। तो ये हम प्रूव भी करेंगे इन इक्वेशंस को इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन take care, a very big thank you that all of you have watched my video and I'm getting that much support and love from your side. I hope कि ये प्यार और ये सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहे। Keep learning and always keep yourself safe at your homes। ठीक है, और इसके बाद अपना पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज आपकी हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। Till then, take care, goodbye and have fun.